Good evening and welcome everyone to this class on Indian polity. In this session, I'm going to talk about the doctrines. Doctrines in the Constitution of India. What is the basic meaning of doctrine? Doctrinaire approach or doctrinal approach basically means the principles that are enshrined in the Constitution of India which should guide the functioning of democracy. कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो the doctrines which should guide the functioning of the which should guide the functioning of the constitution, right? तो इनको हम doctrines कहते हैं. Clear? Is it clear to everyone? So this is the basic meaning of the term doctrine here. All right. Now coming here to the various aspects, कौन कौन से doctrines हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसको समझते हैं हम एक बार. तो doctrines में जैसे हमने समझा कि there is a India has got three layers. Three layers कौन कौन से हैं? Legislature, executive and judiciary are the three layers. So these legislature, executive and judiciary, how they function, there are some principles to enable the smooth interplay or interface between various organizations, right? Organizations के बीच में जो interplay है वो smooth हो, इसीलिए ये बनाया जाते हैं principles होंगे तो क्या by having doctrines, what is the benefit of having these doctrines? Benefit of having these doctrines is that if the controversy or if any problem is arising in one case, we take a decision which is in a manner M. Then if the similar thing is happening again, if we have got a principle in place, if similar controversy or issue is arising, we've got to take the same approach M, because there is a principle behind it, there is a doctrine behind it. अगर किसी स्टेट में आतंकवाद बढ़ता है तो गवर्नर्स रूल लगाया जाएगा. अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ तकरार हो रहा है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कुछ तकरार हो रहा है, तो आर्टिकल 121 ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स between executive, legislature on one hand and judiciary on the other hand. Got it? तो प्रिंसिपल्स होने का फायदा ये होता है कि अगर एक कंट्रोवर्सी हो रही है दोबारा, इफ अ कंट्रोवर्सी इज रिपीटिंग इटसेल्फ, द स्टैंड टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट कंट्रोवर्सी विल बी repeated again during the second time the same controversy happens. Clear? Nisha and others, Abhishek, Praveen, S. Rashmi and others, right? If the law is able to stand the test of, देखो, doctrine of constitutional supremacy, we in India have doctrine of constitutional supremacy. डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी सेज, मैंने ना ये ट्रायंगल, ये प्रिज्म, जैसा कि हमारी क्लासेस में होता था ना, एक प्रिज्म होता था, उसके थ्रू वो फिजिक्स वाली टीचर बोलती थी कि एक कील ठोको, फिर उसके बाद उस कील की रेज को देखो कि कहाँ से रेज जा रही हैं, कील के थ्रू जा रही हैं कि नहीं. वो जो ऑल पिन होता था, राइट? तो ऑल पिन लगाओ, फिर ऑल पिन के जरिए देखो कि रेज जो है दे पासिंग थ्रू द प्रीएम्बल और नॉट. तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये डॉक्ट्रिन ये कहता है दैट इफ अ लॉ इज एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, a bill is passed by the parliament, if the bill after being passed, this is the mirror, and this is the mirror of constitution. If the bill falls exactly on the mirror of constitution, then it is declared to be valid. If the bill is not falling, if the provisions of the bill are not in sync with what is happening in the democracy, are not in sync with what is given in the constitution, then judiciary will declare that bill to be
that bill to be ultra vires the constitution. The bill is touching a law, constitutional law. Bill is not strong on the touchstone. Touchstone क्या होता है? जैसे किसी सुनारे के पास, if you go to a goldsmith, goldsmith will check the purity of the gold by rubbing that ring or by rubbing that piece of gold jewelry onto a stone. That is called as touchstone. So like the goldsmith, our judiciary will touch that stone. Our judiciary will try to rub that piece of bill on the touchstone of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के तराजू में उसे तोला जाएगा कि वो बिल सही है या नहीं. क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट. सो टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है सभी को? समझ में आया? हर बिल को लॉ, देखो मैं क्यों समझा रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. इनको समझना तुम्हें लगेगा कि ये बकवास चल रही है, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस पॉलिटी के ऐसे ही आ रहे हैं. मेरे को नहीं पता कि ये जो सो कॉल्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते. ये चीजें समझाई नहीं जाती अच्छे से. फिर स्टूडेंट क्या करता है, कोई भी एस्पिरेंट प्रीलिम्स में इन छोटी छोटी चीजों को गलती करके आता है. डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का एक इसका ओपोजिट वर्जन है जो कि ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है. डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस इसी तरह के आ रहे हैं. ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ. ब्रिटेन में द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ, राइट? बट दैट इज नॉट द केस इन इंडिया. इंडिया में बाय हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, the fact that we have got a written constitution signifies that C for constitution, encircled C in my classes would signify constitution. The fact that we have got a written constitution tells us that constitution makers made a written constitution, and that written text is going to be more durable, more long lasting. In Britain, until recently there was no written constitution as such. So Britain में constitution makers कोई constitution थी ही नहीं, यानी कि the law made by the ordinary parliament which is elected for 5 years will be the supreme source of law. Law made by the parliament shall be the supreme source of law. Whereas in India, since we have got constitutional law, so it means that all the laws have to conform to the basic tenets of lawmaking as mentioned in the Constitution of India. Every piece of legislation has to conform to the major body, constitution, right? If anything is against the constitution, or if anything is any law or any rule, any law or rule is not, if it is not in conformity any law or rule, if it is not in conformity with the constitution, that law or rule will be declared invalid, or in legal phraseology that will be declared as ultra vires.
Simple. So we in India we follow doctrine of constitutional supremacy. In India we followed constitutional supremacy. Clear? So in India we had followed constitutional supremacy. All right. डन है, सबके लिए क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. अब तुम मेरे से देखो, मैं इतना ज्यादा लिख रहा हूं, तुम इसको लिख लोगे तो अच्छा है. Yes. So everything, winner sonule, everything has to conform to the written text. Otherwise, why would our constitution makers compile such a bulky book? The fact that they enacted a constitution, codified everything, the intention was that this constitution is going to be the supreme source of law. Every other supplementary law, every other new law has to conform to this. If it is in contradiction, if a bill is in contradiction with what is given in the constitution, the bill will be declared ultra vires. या तो वो bill, if that bill in its entirety, if a bill in its entirety is not in conformity with the constitution, then that entire bill will be declared ultra vires and will be declared invalid by the judiciary, exercising its power of judicial review. Judicial review. If a bill, am I being too fast? Now come to the other point. If some of the provisions of a bill are not in conformity with the constitution, if some of the provisions of the bill are not in conformity with the constitution, then only those provisions will be declared invalid. Rest of the bill will survive. निशा, क्या समझ में नहीं आया बच्चे? अच्छा, नो इसलिए था कि मैं स्लो नहीं हूं, ठीक है.
अक्का रीडिंग डाउन, जुडिशरी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है ना, तो जब कभी सुप्रीम कोर्ट व्हेनेवर द जुडिशरी रीड्स डाउन, व्हेनेवर द जुडिशरी डिक्लेयर्स सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ एज इनवैलिड, दैट इज कॉल्ड एज रीडिंग डाउन. जुडिशरी read down the law, आधार बिल. जुडिशरी को सेक्शन 50, फॉर एग्जाम्पल, Section 57 of the Aadhaar Act was struck down. Only Section 57 of Aadhaar Act was struck down. मतलब इसको strike off कर दिया. But rest of the Aadhaar Act survived. So newspaper headline would be Judiciary reads down Aadhaar Act. पूरा एक्ट तो रीड डाउन किया है ना, पहले तो रीड अप हो रहा था वो, अब उसको रीड डाउन कर दिया बाय स्ट्राइकिंग ऑफ ओनली वन सेक्शन. क्लियर? Navneet, we shall answer that question later on. Okay, not now. I'll proceed in the serial order. I cannot jump from one thing to another. Please understand. Okay. Clear to everyone? Is this clear to everyone? Clear? Okay, now judicial review, doctrine of second thing that I'm going to teach you here, doctrine of judicial review. Okay, just 1 minute. Doctrine of judicial review. Doctrine of judicial review means that every law or bylaw enacted in the country will be subjected to review by judiciary. Okay, कोई भी लॉ हो या बाय लॉ हो, उस पे जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस लगेंगे ही लगेंगे. क्लियर? यानी कि जुडिशियल रिव्यू हर चीज का होता है. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज इससे पहले मुझे समझानी पड़ेगी, रुक जाओ. Just 1 minute. So, doctrine of judicial review basically means that every law being enacted in the country will be subjected to review by the judiciary. Okay,
ये एक्चुअली क्या होता था कि पहले कह कह के मुझे ज़बरदस्ती ये लोगो लगवाया जाता था, तो ये लोगो आज तक रह गया है, इसको डिलीट कर देते थोड़ा सा। ज़बरदस्ती फ़ोन आता था सीईओ का कि ये वीडियो पे लोगो लगाओ ताकि हमारी पब्लिसिटी हो, तो ये कभी कभी चीज़ें रह जाती हैं। दिस इज़ ऑल माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई हैव मेड दीज PPTs विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। जस्ट 1 मिनट। कुछ भूत ज़िंदगी के तुम्हें ज़िंदगी भर सताते हैं, उनमें से एक है मेरे लिए ये भूत। नाउ पार्लियामेंट्री लॉज, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे, पार्लियामेंट इज अ बिजी बॉडी, पार्लियामेंट मेक्स द लॉज। पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया, लेकिन पार्लियामेंट का लॉ अगर तो ग्रीन कलर में है तो ठीक है। कुछ लॉ का पार्ट ऐसा हो सकता है जो अल्ट्रा वायरस हो, जैसे हमने अभी समझा अल्ट्रा वायरस थी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि इनवैलिड, तो जुडिशरी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी, राइट। कुछ ऐसा पार्ट होता है जुडिशरी जिसका मीनिंग क्लियर करती है। ये तीन कलर्स तुम्हें ये समझाते हैं, रेड वाला जो पार्ट है वो तो प्योरली इनवैलिड है, ठीक है, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो प्योरली वैलिड है, ओके। ब्लू वाला जो पार्ट है, कभी कभी लॉ में पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती, क्लियर नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करते टाइम कंफ्यूजन अराइज होती है, तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, क्लियर। तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, क्लियर, समझ में आया। नाउ क्लियर, जुडिशरी लॉ के प्रोविजंस को क्लैरिफाई करती है, उसको ये कहा जाता है। अब दूसरी चीज विच यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इज एग्जीक्यूटिव रूल्स। लेट मी टीच यू दिस एग्जीक्यूटिव रूल्स होते क्या है। I'm so sorry guys. Now अगर हम एक शर्ट हैंगर के एग्जांपल से समझें कि ये चल क्या रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दी हैंगर। शर्ट पहनते हो ना तुम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो हैंगर का काम करते हैं, जिसपे कानून का लॉ टांगा जाता है, जिसपे ऑन द बेसिस ऑफ विच अ लॉ इज क्रिएटेड, ठीक है, कॉलर वॉलर बना देते हैं इसका। तो ये लॉ के दहलीज पे, आर्टिकल की दहलीज पे लॉ बना दिया, शर्ट बना दी टेलर ने। टेलर कौन है? पार्लियामेंट। समझ में आया? टेलर कौन है? पार्लियामेंट। अब तुम शर्ट लेने मत चले जाना, मम्मी मम्मी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन वाली शर्ट दिलाओ, राइट। तो ये तो बन गई लॉ। अब दूसरी चीज देखो, ये बन गई लॉ। अब इस लॉ की जब डिटेल्स भरी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज अ बिजी बॉडी, पार्लियामेंट विल enact a law in the skeletal format, ठीक है। स्केलेटल टाइप लग रहा है ना ये, कि ये क्या है, डिटेल्स नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव यानी कि हर मिनिस्ट्री के अंदर, मैंने तुम्हें बताया था मिनिस्ट्री के अंदर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव। मिनिस्ट्री के अंदर हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, द मिनिस्ट्री के अंदर कौन होता है? मिनिस्टर होता है, फिर उसके अंदर सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारा कुछ जो पार्लियामेंट लॉ बना देती है। बिकॉज इन आवर कंट्री क्लैरिटी, डिस्टिल क्लैरिटी इज नीडेड, बिकॉज इन आवर कंट्री पार्लियामेंट इज अ बिजी बॉडी एंड वी हैव गॉट डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से ही चुनी जाती है। तो वही मंत्री जो बिल पास होते टाइम पार्लियामेंट में बैठे थे, वही मिनिस्टर्स क्या करेंगे? पार्लियामेंट में बैठे मिनिस्टर्स बिल पास करते टाइम सरकार को ये कह देंगे मिनिस्टर्स कि हम लॉ भर लेंगे, लॉ में डिटेल्स हम भर लेंगे रूल्स के जरिए। अब ये जो रूल्स बनाए जाते हैं इनको क्या कहेंगे? फाइनर डिटेल्स, माइन्यूट नट्स एंड बोल्ट्स।
Clear? Deepak, just 1 minute, guys. Coming to this part, God bless you, क्यों? ओके तो ये फाइनर डिटेल्स, ये दर्जी का काम जो है कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहा है, एग्जीक्यूटिव रूल्स और बायलॉज, और इसको एक और टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट्स जब लेजिस्लेट कर रहे हैं तो जो लॉ होता है अब देखो, दर्जी अगर टेलर कोई बटन लगाएगा, तुम्हें यह ध्यान रखना है, हैंगर से बाहर, आर्टिकल के दायरे से बाहर लॉ नहीं जा सकता। कोई ऐसे थोड़ी है कि शर्ट ऐसे खड़ी है हवा में, देखा है कभी? ऐसे नहीं, जितना हैंगर होगा उतनी ही शर्ट होगी। यानी कि लिखो रिफाइंड वर्ड्स में, द स्कोप ऑफ द लॉ cannot be more than scope of the article. The scope of the law cannot be greater than the scope of the article. Law cannot exceed, or in other words, law in its scope, law in its scope cannot exceed articles. That is constitution. Law in its scope cannot exceed the scope of the article. ठीक है, देखो और सब्जेक्ट्स का पता नहीं, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता नहीं, मैं अपने टीचर्स को फिर भी गाइड कर रहा हूँ जो जेवीज टीम के टीचर्स हैं, लेकिन पॉलिटी में ना 100% मेरा रिकॉर्ड इस बार 2-3 साल से मैं जो भी पढ़ाते आ रहा हूँ, इसी अप्रोच से यार क्वेश्चन आंसर होते हैं। तुम्हें रट्टा लगाना है, क्या चल रहा है कोचिंग इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूँ 20/20 पॉलिटी में यदि लाने हैं तो जेवीज अप्रोच तन्ने फॉलो करनी होगी, राइट? यू गाइज वुड हैव टू फॉलो दिस अप्रोच। रिफाइंड वर्ड्स में अगर मुझे बोलना हो, इसी अप्रोच से क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइज, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें सिंपल व्यू लेना है। लॉ इन इट्स स्कोप, आर्टिकल यानी कि हैंगर से बाहर, लॉ यानी कि शर्ट नहीं जा सकती। अब लॉ जब बन गया, द स्कोप ऑफ द रूल्स कैन नॉट बी मोर देन द स्कोप ऑफ द लॉ। पेरेंट लॉ, पेरेंट लॉ ऐसा थोड़ी है कि बटन हवा में लटक रहे हैं, ये रूल्स अपने आप लटक, नहीं, दे नीड सम बेस, एंड दैट बेस इज द व्हाट? रूल्स, एंड बेस इज द लॉ। बिल जो पास हुआ है, जो एक्ट बनाया है, उस एक्ट की बिना पे ये बटन लगाए जाएंगे, ठीक है? तो रूल्स जो हैं, रूल्स हैव टू कंफर्म टू द पेरेंट लॉ। डन? क्लियर? Is this clear to everyone? Is this clear to everyone, guys? This is how you have to understand these difficult things, even though they are very simple and all, but this is how you have to understand these things. Now coming here to the other aspects, clear? So now coming here to the other aspects, फटाफट चलते हैं आगे। Doctrine of judicial review. Every law has to be reviewed. Every set of law has to be reviewed by the
judiciary, judicial review. That is why, because increasingly we are seeing a tendency whereby laws are being challenged by the people, by the population at large, by the critics of the government or by opposition political parties in the court of law. ओके कैसे हो रहा है ये सब कुछ, किस लिए हो रहा है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट मेजॉरिटेरियन होने लगती है तो बिल्स का रिव्यू जुडिशरी के पास ज्यादा जाने लगता है. गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होती है जब गवर्नमेंट कुछ औने पौने बिल पास करने लगती है. व्हेन द गवर्नमेंट हैज गॉट द टेंडेंसी टू पास द बिल्स which are seemingly or which are increasingly ultra vires the constitution, people start approaching judiciary, and judiciary exercises its power of judicial review. Judicial review is of parliamentary laws, executive rules, as I have explained you. Then judiciary is duty bound to review the decision given by itself. Judicial review of judiciary's own judgments. Judiciary is duty bound to review its own judgments also. Clear? Clear to everyone? ओके तो दिस इज हाउ जुडिशरी इवन रिव्यूज इट्स ओन डिसीजंस. अब इसका एनालिसिस है, फैक्चुअल पार्ट समझ में आ गया. It is the duty of the judiciary. Judiciary cannot say that I am not going to review. Now, as I told you in the first few classes, that this credibility crisis of the government. What is government doing is, government is seen to be passing laws which are touching the boundaries or which seem to be exceeding the boundaries of the bill, boundaries of the constitution. Okay, जब constitution को exceed करने लग जाओगे तो लोग judiciary के पास जाएंगे और judiciary can suo motu मतलब own its own, take the cognizance of a law or impropriety in the law. Judiciary can take the cognizance. Clear? Okay, so these things are there now. ठीक है, तो जुडिशरी को अपने आप किसी भी समस्या को संज्ञान में लेने से कोई नहीं रोक सकता. डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द रीजन. अब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए फ्रॉम वेयर द बेसिक फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाउ कैन यू से दैट judicial review, the power of judicial review is given in the constitution? How can you say that the power of judicial review is given in the constitution? The power of judicial review is given in the constitution because we have got a written constitution. The fact that, or if I were to write it this way, if we were to write it this way, that judicial review is the logical corollary of having a written constitution. समझ में आया? The fact that we have got a written constitution, judicial review is the logical corollary of having a written constitution. क्लियर है सबको?
क्योंकि देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक रिटन बुक है और अगर सरकार पार्लियामेंट ऑफ द डे जो कि 5 साल के लिए इलेक्टेड है वो कुछ ना कुछ बिल ऐसे पास करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म नहीं करते होंगे, इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को और सैंक्टिटी को, मर्यादा को प्रिजर्व करने के लिए ये करना जरूरी है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन है सबको? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और मैंने कुछ नहीं रहा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एनी लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल if any law takes away or abridges any of the fundamental rights, or otherwise also if the law is not in conformity with any other provision of the constitution. Clear? Now doctrine of colorable legislation. कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि अगर कोई लॉ, पहले हम समझते हैं किस इस चीज को, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब हैविंग अ यूनियन लिस्ट एंड अ स्टेट लिस्ट, ठीक है। हैविंग टू लेयर्स, हैविंग टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, TIERS। तो जब हमारे यहाँ पे 2 टीयर्स होते हैं, यूनियन विल वर्क इन द एरियाज, Union Parliament will make laws on the areas which are given in the Union list. State legislature will make laws on the areas on the subjects given in the state list. If it so happens that Union government, Union Parliament makes the laws on the subjects given in the state list, that is an intrusion, घुसपैठ, घुसपैठ है ना। In Hindi we will call it as घुसपैठ, और in English we'll call it as intrusion. Intrusion means कि हस्तक्षेप, interference, right? जुडिशरी जब इसको इंटरफेयर करने लग जाती है। क्लियर? ओके, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन दे स्टार्ट हैपनिंग। तो अब दूसरा देखते हैं फंडा, यहाँ पे देखो जब इंट्रूजन होने लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स, बोथ द गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट एक थर्ड लिस्ट है जिसमें कि दोनों यूनियन और सेंटर लॉज बनाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट विल मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉज ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इज द कॉमन लिस्ट ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो इसमें दे रखे हैं वो कॉमन नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इज commonly dealt with by both the organs. CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लॉ, क्राइम, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों लॉ बनाते हैं। लेकिन ज्यादा कंट्रोवर्सी इस एरिया से होती है जब यूनियन पार्लियामेंट इंट्रूड्स इनटू द एरिया रिजर्व्ड फॉर द सेंट्रल, for the state list. Okay, so I will tell you, I'll give you an example to teach you how this is happening. I'll clarify this also कि ये कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। Now just 1 minute, coming here to this, ये बार बार अटक रही है PPT आज।
नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो इस स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का एक लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक है, under this act, as the name tells you, central government, ministry, union, this is a subject given in the union list, cruelty to animals को prevent करना union list के अंदर दे रखा है। under this law parliament enacted the, under this provision parliament, under this subject parliament had the power to enact a law. Now union ministry got the power to implement this law. Under this law rules, as I told you, executive made the rule, ministry made the rule that animals like cattle, cow cannot be slaughtered, cattle can't be slaughtered, okay, which is not given in the subject of the law. Nowhere is it mentioned that you cannot kill cow. It is just mentioned that you cannot be cruel to the cow even as the cow or buffalo or any cattle is living. उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनको टाइट करके ट्रक में नहीं ले जाओगे, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। किसी मुर्गे को मारोगे तो दर्द कम होना चाहिए, एकदम से हलाल करोगे, ऐसा नहीं कि एक झटके में मारोगे, राइट, ये सब लिखा है। क्रुएल्टी में ये नहीं लिखा, इस एक्ट में ये नहीं लिखा, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें भी सिर्फ ये लिखा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, एनिमल वेलफेयर। दिस सब्जेक्ट इज गिवन टू द यूनियन अंडर द यूनियन लिस्ट। देयर इज अनदर सब्जेक्ट in the state list. What is the subject? Fairs and markets. Now as per the logic you can understand fairs and markets as an area, as a subject will be better managed from the state level only. ऐसे थोड़ी है, फेयर्स मेले जो लगते हैं, पुष्कर मेले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी खुद आएंगे रिबन काटने, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। तो फेयर्स कैसे होंगे, फेयर्स की रेगुलेशन, मेला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसका रेगुलेशन बेटर ये है कि स्टेट लिस्ट में दिया जाए, इसीलिए वो स्टेट लिस्ट में दिया भी गया है। अब स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ने क्या किया, रूल्स एनैक्ट करते टाइम ये लिख दिया कि इफ फार्मर वन इन द फेयर, इन द बफलो फेयर, एनिमल्स मार्केट होती है ना, एनिमल्स फेयर जो लगता है, उस फेयर में, मेले में, फार्मर वन इफ ही इज सेलिंग हिज बफलो और काउ to farmer 2 or farmer 3, okay, then that buffalo will not be slaughtered. Farmer 1 will have to obtain the certification, he is the seller, he has to take a certificate that this buffalo or cow shall not be killed, okay, by farmer 2. Certificate will be required by every farmer who is selling his cattle, be it buffalo or cow, that this will not be allowed. Okay, that the cow, farmer 2 will sign that he or she will not slaughter the cow, गाय को या भैंस को मारा काटा नहीं जाएगा। अब ये जो मैटर है ना, ये वाला, ये फेयर्स का रेगुलेशन का मैटर तो स्टेट लिस्ट में आता है, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मेले में चूड़ियां हो या गाय हो या भैंस हो, बेचा खरीदा ऊंट हो, कुछ भी हो,
मेले में ट्रेडिंग कैसे होगी, मेले का लाइसेंस हो गया, मेला कौन सी जगह पे होगा, इस सब के लिए कौन सी लिस्ट में दे रखा है मैटर, स्टेट लिस्ट में. दैट मीन्स ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी द राइट अथॉरिटी टू डिटरमाइन हाउ द ट्रेडिंग, हाउ द सेल एंड परचेज विल हैपन इन द फेयर्स, एनिमल फेयर्स और एनी अदर फेयर्स एंड मार्केट्स. राइट, तुम लोगों ने देखे हैं ना, गाय भैंस के मेले लगते हैं यूपी में, बिहार में गाय भैंस बेची जाती है संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को. तो उसमें कैसे गाय भैंस बेची जाएगी, ये मैटर यूनियन लिस्ट में नहीं दे रखा, ये मैटर दे रखा है स्टेट लिस्ट में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पावर के अंडर ये रूल बना दिया कि फार्मर वन विल हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट from farmer 2 that farmer one's cow that he is selling to farmer 2 shall not be used for बलि चढ़ाने के लिए, for slaughtering. ठीक है, समझ में आया? This is called as doctrine of, this is called as intrusion. Under the pretext of, under the गाय भैंस का हवाला देते हुए, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यू आर ट्राइंग टू इंट्रूड इनटू द एरिया मेंट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर. तुम इंटरफेयर कर रहे हो स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर्स में. तो जब कभी ऐसा लॉ, पार्लियामेंट के पास किया हुआ लॉ जुडिशरी के पास में रिव्यू में आएगा और जुडिशरी को लगता है कि जब इस लॉ को अच्छे से टटोला जाए, इस लॉ को पूरी तरह से असेस किया जाए, स्क्रूटिनी की जाए, स्क्रूटिनाइज किया जाए और ये पता लगे कि इनडायरेक्ट एंट्री इनटू द स्टेट लिस्ट हो रही है, तो उस लॉ को उस हद तक डिलीट कर दिया जाएगा जिस हद तक वो इनडायरेक्टली इंट्रूड कर रहा है, इस हद तक. समझ में आया? और जो बाकी का लॉ है कि क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स नहीं होनी चाहिए, कि एनिमल्स को जब ट्रक में लाद के लेके जाओगे, एनिमल को जब गाय भैंस को ट्रक में लेके जाओगे तो उसमें 10 से ज़्यादा भैंसें नहीं होनी चाहिए, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. कितने जानवर, हाउ मेनी एनिमल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड इन वन गो, कितनी कैपेसिटी, कितनी क्यूबिक कैपेसिटी का ट्रक है, उस हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कर रही है कि एनिमल फेयर्स में जब गाय भैंस बेची जाएगी, वो किस हिसाब से बेची जाएगी, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट होगा, वो गलत है. एनिमल फेयर्स का जो मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता ही नहीं. क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन? Are we done? क्लियर है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. नाउ फेडरलिज्म भी क्लियर हो गया. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये लास्ट है आज का. देखो मेरी तरफ देखना, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वी हैड अ लॉट ऑफ लॉज which were there in the British era, right? And the government had a lot of other problems to deal with, like riots हो रहे थे, गरीबी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लॉज को उठाया और बोला कि ये लॉज इंडिया में एप्लीकेबल होंगी. These laws will be applicable in India. बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश एरा में जो लॉ बनी थी, मेरी तरफ देखना, पीछे मत देखना, ब्रिटिश एरा में जो लॉ लगी थी, लॉ बनाई गई थी, वो तो ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश टेन्योर के दौरान जो गवर्नेंस थी उसके लिए बनाई गई थी. राइट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो लॉ बनाई गई थी वो उसके लिए, उस एरा के लिए बनाई गई थी. क्लियर? ब्रिटिश एरा में तो भगत सिंह को जेल में डालना था, गांधी जी को जेल में डालना था, सबको जेल में डालना था. लेकिन अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इलेक्शंस हो रहे थे, सुप्रीम पावर लाइज इन द पीपल, ये कहा जा रहा था. फिर फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, मौलिक अधिकार
मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो सरकार ने ये कहा कि हमारे पास टाइम कम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का लॉ हो, ब्रिटिश एरा का, या कोई भी लॉ हो, अगर वो लॉ का चांद या अगर वो लॉ का कुछ ऐसा परछाया, कुछ ऐसी शैडो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पड़ेगी, तो वो लॉ उस हद तक इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। ये लॉ जो है, ये येलो रेड वाला जो पार्ट है ना, ये लॉ है। इस लॉ की छाया यदि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स पे पड़ रही है तो ये नलिफाई डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि दिस लॉ विल बी रेड डाउन बाय द कोर्ट्स टू द एक्सटेंट दैट इट कॉम्प्रोमाइजेस विद आवर फंडामेंटल राइट्स। ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पुराने ब्रिटिश एरा के लॉज हैं। अगर पुराने ब्रिटिश एरा के लॉज मेरे फंडामेंटल राइट्स का हाथ तोड़ दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी राइट हैंड तोड़ दे रहे हैं, ये पुराना लॉ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट हैंड मेरा राइट है। अगर मेरा कोई पुराना लॉ ब्रिटिश एरा का, क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम कम था, उन्होंने वो लॉ डिट्टो कॉपी कर लिए, फोटोस्टैट करा लिए, लेकिन ये कह दिया साथ में कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स, which basically means that if any law comes as an eclipse on the if any law enacted during the British era puts a shadow on my fundamental rights, then that law will be considered as being eclipsed by the sun of democracy, by the sun of fundamental rights। सूरज जो है पूरी तरह से अपनी जो है रेज को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। कोई भी लॉ जो इस हद तक फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा, वो लॉ अपने आप एक्लिप्स हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। समझ में आया? वो लॉ इतना ही वैलिड रहेगा जितना कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर रहा, बस इतना। ये लॉ इतना वैलिड है, लेकिन जैसे ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा, इनवैलिड। डन? यस, ऐसा होता नहीं है, वो अलग बात है। वो सरकार जो आज की सरकार है या जो पहले की सरकारें, भारत आजाद भारत की कुछ सरकारें हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस को अलाइव रखा है, जैसे कि सेडिशन theoretically। अब that depends upon the judiciary। the day judiciary will decide, the day judiciary will start performing its duty of judicial review, the day judiciary will start actually implementing doctrine of eclipse, that day sedition etc will not survive। वो तो फिर, ये तो मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूं, दिस इज व्हाट इज गिवन इन द थ्योरी। व्हाट जुडिशरी एंड गवर्नमेंट इज डूइंग इज democracy at work। democracy at work may not always be in sync with what is given in the letter of law। clear? Is this clear to everyone? Clear? ऑलराइट, तो ये जो प्रोविजन है 13, आर्टिकल 13 ये कहता है कि इट विल बी एप्लीकेबल ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री मतलब ब्रिटिश एरा की, और जो बाद में भी जो लॉज बनाई जाएंगी, जैसे कि आधार एक्ट।
अगर आधार एक्ट मेरी प्रिवेसी से कॉम्प्रोमाइज करने को मुझे कहता है तो वो आधार एक्ट उस हद तक नलीफाई हो जाएगा जिस हद तक वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, राइट। यानी कि कुछ इस तरह से ये पूरा ये जो एरिया है मुझे बस ब्लैक चाहिए, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ये पूरा एरिया ब्लैक हो जाना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो सूरज है ना वो पूरी तरह से खिलना चाहिए, उसके आगे कोई भी बादल यदि आएंगे किसी भी लॉ के तो वो बादल चीर दिए जाएंगे, वो बादल को रीड डाउन कर दिया जाएगा। क्लियर? दिस इज हाउ इट शुड लुक। डन? Clear? So this is all for today. I'll be teaching you the rest of the doctrines in the next class tomorrow. Thank you everyone. Bye bye. Thank you guys.